سرور میں کوہ سلیمان تیز موسلادھار بارش سے بڑے برساتی نالے بہہ نکلے، قبائلی علاقوں کو جانے والے راستے بھی منقطع۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوٹ چھٹا اسد خان چانڈیا کا ٹیم کے ہمراہ دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ برساتی نالے کے روٹ پر تمام تر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے علی موسیٰ۔ علی بتائے گا۔ جی بالکل، سخیر سرور اور قبائلی علاقوں میں ہونے والی مسلسل موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سخیر سرور اور دیگر علاقوں میں بہت بڑے ندی نالے جو ہیں وہ بہہ نکلے ہیں۔ سخیر سرور کا بڑا برساتی نالہ بھی جو ہے وہ آ گیا ہے، مگر انتظامیہ کے بروقت حفاظتی اقدامات کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوٹ چھٹا اسد خان چانڈیا صاحب موجود ہیں، جنہوں نے بروقت پہنچ کر آبادی کو کلیئر کیا۔ مزید ان سے پوچھیں کہ کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم نے ہمیں وارننگ جاری کی تھی کہ یہاں پہ بارشیں ہونی ہیں، تو اس کی روشنی میں ہم نے یہاں سے آبادی تھی اس کو پہلے وارننگ جاری کی تھی اور ٹائم سے ہم نے ویکیٹ کرا لیا۔ جہاں پہ ڈائیوریاں لگانی تھی وہ ہم نے کیا۔ اس میں ہمارے ساتھ ہمارے اے ڈی ایل جی، ہمارا ریونیو سٹاف، ہمارا بی ایم پی کا تھانہ، ہماری پولیس، وہ سارے آن بورڈز ہیں۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے ہم ریڈی ہیں۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی خصوصی ہدایت سخیر سرور نکلے ہیں۔ بہت شکریہ علی موسیٰ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان پرانی کچہری کے مال خانے سے کیا کیا نکلا۔ 120 کلو سے زائد چاندی، 1 کلو سے زائد سونا، قدیم تلواریں اور اسلحہ بھی برآمد۔ مال خانے سے نکلنے والا سونا، نوادرات سمیت دیگر اشیاء ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس منتقل کر دی گئیں۔ قدیمی مال خانے میں موجود سامان کی فہرستیں مرتب کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق مال خانے میں سن 1951 سے لے کر 1962 کے مال مقدمہ کا سامان اور بھاری مقدار میں چاندی کے زیورات موجود تھے۔ خزانہ بتایا جا رہا تھا، اس میں مال مقدمہ کے طور پر چیزیں ملی ہیں، جس میں سونا، چاندی اور کرنسی کے کچھ سکے اور قیمتی پارچات وغیرہ موجود تھے۔ مال خانے میں قیمتی نوادرات بھی موجود تھے۔ مقدمات کی تمام دستاویزات اور دیگر سامان نئی کچہری میں قائم مال خانہ میں منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سامان سے مغلیہ دور کے چند سکے اور پرانی کرنسی کے چند نوٹ، 8 پرانی سائیکل، گھڑیاں، ٹائم پیس، چاقو، 100 کارتوس، تانبے کے برتن، کاپر کی تاریں اور 1 عدد کوڑا 7 mm کی استعمال شدہ گولیاں برآمد ہوئیں۔ نوادرات کو اور جو جتنا بھی گولڈ نکلا ہے اور دوسری چیزیں، ان کو جوڈیشری کو دے دینا چاہیے، تاکہ جو ہے، کیونکہ یہ جوڈیشری کے ہی پریمیسز میں سے نکلا ہے۔ سامان میں افغانی کرنسی اور حقہ بھی موجود تھا۔ پرانے برتن، کشکول، ٹیلی فون اور 2 تلواریں محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کر دی گئیں۔ مال خانے میں مجموعی طور پر 30 سے زائد باکسز موجود تھے، جبکہ 8 خالی تھے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ دیجے خان کی سیاحتی مقام فورٹ منرو میں مزید ہریالی ہونے کو تیار۔ محکمہ جنگلات نے ایریل شیڈنگ کا مزید پلان مرتب کر لیا ہے۔ کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں مزید ہریالی ہونے کو تیار ہے۔ محکمہ جنگلات نے کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر ایریل شیڈنگ کا مزید پلان مرتب کر لیا۔ فورٹ منرو میں مزید ہریالی کے لیے محکمہ جنگلات نے ڈیمانڈ بھیج دی۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر محکمہ جنگلات فضل الرحمان کہتے ہیں پلان کے بعد کوہ سلیمان میں مزید ہریالی ہوگی۔ ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا 2009-10 کے دوران، جس سے ایریل ریسیڈنگ کی اس کے بہت اچھے اور فروٹفل ریزلٹس ہمیں ملے ہیں، اور اب آپ اگر وزٹ کریں فورٹ منرو سائٹ پر جا کر دیکھیں تو وہاں پر اور اس کے سراؤنڈنگ میں جہاں پر ہم نے ایریل ریسیڈنگ کی وہاں پر ریزلٹس ہمیں بہت پرومائزنگ ملے۔ محکمہ جنگلات ڈیرہ غازی خان کی ڈیمانڈ پوری ہونے پر پنجاب حکومت سے کوہ سلیمان میں ہوائی جہاز سے مزید پودوں کے بیج پھینکے جائیں گے۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر فضل الرحمان کہتے ہیں کہ فورٹ منرو میں اس سے قبل 2010 میں ہوائی جہاز سے بیج پھینکے گئے تھے، جس کے آج اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارا ایک پروپوزل یہ بھی ہے، سجیشن ہم نے فلوٹ کی ہوئی ہے، گورنمنٹ کو بھیجی ہوئی ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہاں پر 1 ایکڑ کی بنیاد پر جو ہے نا لگا کر دیے جائے، تاکہ وہ اسے سنبھالیں، اور اس سے ایک تو ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا، دوسرا یہاں کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا، اور ٹری کور اور کاربن سیکویسٹریشن جو ہے نا وہ ہماری ہوگی۔ بیج کی وجہ سے فورٹ منرو کے پہاڑوں پر ہریالی ہوئی تھی۔ مزید بیج کوہ سلیمان کے دیگر پہاڑی علاقوں میں ایریل سسٹم سے پھینکے جائیں گے، تاکہ ہریالی کے ساتھ علاقے کا موسم مزید بہتر ہو سکے۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ محسن الملک، ڈیرہ غازی خان۔ دوسری جانب رحیم خان کے محلہ دھوبی گھاٹ میں شہزادہ علی اصغر کی بھوک اور پیاس کی یاد تازہ کرنے کے لیے میٹھی کھیر اور سبیل تقسیم کی گئی۔ میاوالی میں ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔
डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जारी करदा हिदायत और कवायद और जवाबित के मुताबिक जमीनी हकाइक को मलहूज रखते हुए अराजी की प्राइस असेसमेंट को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए दरकार अराजी की कीमतों का तयन करते वक्त किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका अराजी मालिकान को कानून के मुताबिक इनकी दहलीज पर अदायगी मुमकिन बनाई जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू वाहिद अर्जुमन जिया, असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली फरहान मुश्तबा खान, असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल उमर फारूक और मुतल्लिका महकमों के ज़िलाई अफसरान के अलावा रेवेन्यू अफसरान ने इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा इकदाम, रेवेन्यू से मुतालिक अदालती केसेस की नौयत को घर बैठे ऑनलाइन चेक किया जा सकेगा। रेवेन्यू का पंजाब भर के शहरियों के लिए बड़ा इकदाम, रेवेन्यू के मुतालिका अदालती केसेस का रिकॉर्ड इंटरनेट पर दस्तयाब होगा, जिससे शहरी घर बैठे केस की नौयत को ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन जिया ने बताया कि डाटा एंट्री के लिए अदालती और रेवेन्यू एहलकारों की ट्रेनिंग करा दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये रेवेन्यू के जो जुडिशल केसेस हैं उनका ऑनलाइन जो केस मैनेजमेंट सिस्टम एक शुरू किया है, जिसकी आज हमने यहाँ पे ट्रेनिंग कराई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब आईटी बोर्ड के तहत, और उसके जरिए हमने अपना जो अमला है, अदालती अमला है, उसको ट्रेन किया है कि उन्होंने केसेस की एंट्री कैसे करनी है, जब उनकी कार्रवाई चल रही होगी केसेस की तो उसको फिर अपडेट कैसे करना है उन्होंने। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रेवेन्यू केसेस की अदालती नौयत देखने के लिए मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवाई जाएगी। वेबसाइट और मोबाइल ऐप मुतारिफ होने के बाद मुतल्लिका अफराद को अदालतों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। सिस्टम दिसंबर तक फुली इन प्लेस हो जाएगा, तो उस वक्त से पहले उम्मीद है कि इसकी मोबाइल ऐप भी आ जाएगी। ऑनलाइन तो वेबसाइट पे तो होगा इंटरनेट पे, तो इसका ज़ाहिर प्लान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और आईटी पंजाब आईटी बोर्ड ने यह प्लान किया कि इसकी मोबाइल फ़ोन ऐप भी होगी और मोबाइल फ़ोन के जरिए भी कोई भी इस केसेस की लेटेस्ट अपडेट पता कर सकेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन जिया ने मजीद बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक केस मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शनल हो जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक और मारूफ सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने शुजाबाद का दौरा किया। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम 150 अफराद में राशन और नकदी तकसीम की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर, शुजाबाद वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ डेफ के सदर गुलाम मुस्तफा और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर किया। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासर हुआ। उनको रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत जिला मुल्तान में 3,16,972 मुतासरीन को इमदाद दी गई। अब तक 3 अरब 86 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए जा चुके। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने शुजाबाद के गरीब अफराद के लिए 25 लाख रुपए से फंड्स कायम करने का ऐलान भी किया। उनका कहना था कि जरूरतमंद को कर्जा हसना के तौर पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। शुजाबाद में फलाही शोबे में बहुत काम करने की जरूरत है। कुव्वत समान और गोयाई से महरूम अफराद मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। ताउन करने पर डिप्टी कमिश्नर ने मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेपको डीजी खान का दौरा। एससी मेपको, एक्सिन मेपको मुमताज सोलंगी और दीगर की जानिब से मेपको दफ्तर में इस्तकबाल किया गया। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेपको का डीजी खान का दौरा। एससी मेपको, एक्सिन मेपको मुमताज सोलंगी और दीगर की जानिब से मेपको दफ्तर में उनका इस्तकबाल किया गया है। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। एससी मेपको, एक्सिन मेपको मुमताज सोलंगी और दीगर की जानिब से मेपको दफ्तर में इस्तकबाल किया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेपको का डीजी खान मोहसिन रजा ने डेरा गाजी खान मेपको ऑफिस का दौरा किया। एसई मेपको इंजीनियर इमरान महमूद, एक्सियन मेपको मुमताज सोलंगी और दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर सीईओ मेपको ने डेरा गाजी खान दफ्तर में पौधा भी रखा। इसे खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सीईओ मेपको का कहना था कि बिजली चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। प्रायोरिटी मेरी जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ है। बड़ा वाज़ेह पैगाम है और मैं उसमें मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें हमारा साथ दें। जो असल बिजली चोर हैं उनको पकड़ें। अगर हम असल बिजली चोरों को पकड़ेंगे तो जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं वो फैसिलिटेट होंगे। सीईओ मेपको का कहना था कि मुलाजमीन के मसाइल को भी फौरी हल किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर चोलिस्तान जीप मेले में ट्रेड फेयर मेला बेहतरीन तरीके से कराने पर इख्तितामी तकरीब का एहतमाम किया गया।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर चोलिस्तान जीप रैली के इवेंट को ट्रेड फेयर मेला लगाकर 4 चांद लगाए। इस सिलसिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में एक क्लोजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत अफसरान और चैम्बर के मेंबरान ने शिरकत की। सदर चौधरी जावेद इकबाल ने कहा कि ट्रेड फेयर मेले पर अवाम को बेहतरीन सहूलियात मिली, मजीद बेहतरी लाएंगे। पहला हमारा ट्रेड फेयर यूनिवर्सिटी ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया और कामयाब हुआ। चूंकि वो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, हमें आइडिया आया और हमने उसको मैनेज किया, अरेंज किया। अब चूंकि हमारे पास पूरा साल अवेलेबल है, हम उसको प्रॉपर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ हम राब्ते में हैं। इंशाल्लाह अब जो आने वाला ट्रेड फेयर होगा, हम समझते हैं ये बहुत अच्छा ट्रेड फेयर होगा। उसमें नंबर ऑफ स्टॉल भी ज्यादा होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इंशाल्लाह ज्यादा क्रिएट करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ताउन से इस ट्रेड फेयर का इनेकाद मुमकिन हुआ था। इसलिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर, लेक्चरार और मुलाजमीन को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी अतर महबूब ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर मुतअद्दिद मंसूबों पर काम करने के प्लान हैं। जो यहाँ की नॉलेज इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का रोल है कि नई प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज लाई जाएं और बहावलपुर जो है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन बने। तो इसके सिलसिले में चैम्बर जो एफर्ट्स कर रहा है वो एक इंतहाई काबिल तहसीन है। इंडस्ट्रियल स्टेट का क़याम है, मोटरवे से लिंकेज करना है, तमाम इंडस्ट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके इश्यूज़ को गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। तो यूनिवर्सिटी जो है इनका नॉलेज पार्टनर है, यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलकर काम करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामिया यूनिवर्सिटी दोनों बहावलपुर के बेहतरीन और अहम इदारे हैं। दोनों इदारों के सरबराहान ने बहावलपुर में जल्द कायम होने वाली इंडस्ट्रियल स्टेट को कामयाब बनाने का भी अंदिया दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। दूसरी जानिब डायरेक्टरेट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान की जानिब से रोही चोलिस्तान में नौसर बलोचा के मकाम पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। हुकूमत की शजरकारी मुहिम के हवाले से डायरेक्टरेट ऑफ लाइफ स्टॉक चोलिस्तान ने रोही के इलाके नूरसर बलोचा से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल, MD चोलिस्तान, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बहावलपुर और डायरेक्टर चोलिस्तान ने पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया। कमिश्नर आसिफ इकबाल का कहना था कि शजरकारी के दौरान रोही के मकामी पौधे लगाए जाएंगे। सबसे बड़ा जो इसका जो थीम है वो ये है कि जो लोकल इंडिजिनस स्पीशीज हैं जैसे कीकर, फ्राश, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि पिलकन लगाइए, पोटाजन लगाइए, उसके साथ जामन लगाइए, उसके साथ बेरी लगाइए, उसके साथ सीमन लगाइए, ताकि एक हारमोनियस कम्बिनेशन बने, परिंदे आएँ, बारिशों का पैटर्न चेंज हो, जो आपकी साफ सुथरी हवा है और साफ हो और लोग मौज मारे, चोलिस्तान के लोग छलांगे लगाएं। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक चोलिस्तान डॉक्टर अली रजा बासी का कहना था कि मुहिम के दौरान 35,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। इससे कबल भी गुज़श्ता सालों में 70,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। जितने प्लांट्स हमने जो अंदर खेतों में लगाए हुए सारे वो फॉडर प्लांट्स हैं जानवरों के न्यूट्रिशन के लिए, और जो खास तौर पे अकेशिया एम्प्लीसेप्स हमने लगाया था पिछले सालों में, वो उसका फ़ायदा ये है कि 17% उसमें प्रोटीन है और उसकी हजमियत है 71%। यानी जो जानवर इसको खाएगा वो डायरेक्ट उसकी हजमियत होगी और उसका जो है पोटेंशियल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो जल्दी जो है ना वो जाएगा और ज़्यादा दूध देगा। इफ्तिताह के मौके पर कमिश्नर बहावलपुर को लाइफ स्टॉक फार्म्स और शजरकारी मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में वाइस चांसलर चोलिस्तान वेटरनरी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, चेयरमैन हुबारा फाउंडेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर इकबाल अवान और डॉक्टर अदील असलम ने शिरकत की। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोलगेट पामोलिव के जानिब से निश्तर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में कोरोना वायरस से बचाव बारे तकरीब का इनेकाद किया गया। कोलगेट पामोलिव की जानिब से डॉक्टर्स में PPE किट्स तकसीम की गई। कोविड-19 के खिलाफ कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान की मुहिम कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री में होने वाली तकरीब में ऐसे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की खिदमात को सराहा गया जिन्होंने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम किया। इन जनरल तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में काफ़ी सारे फंड्स प्रोवाइड कर रही है और ये किटें प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रही है। बहुत सारी NGOs, प्राइवेट डोनर्स, इस किस्म के कमर्शियल इदारे जैसे आज कोलगेट पामोलिव ने हमें किट्स दी हैं, ये लोग भी किटें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सारी मुश्तरका काविश के साथ मिलकर इंशाल्लाह हम कोविड को बीट करेंगे। कोलगेट पामोलिव की जानिब से हॉस्पिटल सपोर्ट ड्राइव कोविड-19 के तहत अस्पताल इंतजामिया को PPE किट्स फराहम की गयी। तकरीब से खिताब के दौरान प्रिंसिपल निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री प्रोफेसर इफ्तिखार खान का कहना था कि कोरोना वायरस के दौरान अस्पताल के अमले ने बेहतरीन अंदाज में खिदमात सर अंजाम दी। अस्पताल में कोरोना के हवाले से SOPs का भी खसूसी ख्याल रखा जा रहा है। कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान अपने हीरोज जो कि इस जंग के खिलाफ फ्रंट लाइन पे हैं,
تو ان کی پروٹیکشن کے لیے مختلف سامان پرووائڈ کر رہا ہے، جس میں پروٹیکٹیو گیئر کٹس ہیں، گلوز ہیں، فیس ماسک ہیں۔ تقریب میں پرنسپل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری پروفیسر ڈاکٹر افتخار خان، وائس پرنسپل ڈاکٹرز، مینیجر پروفیشنل کولگیٹ شہزاد قمر سمیت دیگر ٹیم ممبرز نے شرکت کی۔ تقریب میں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔